ओके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लोग अभी भी आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ नॉट कम, बट आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कम अहेड. Everybody, if you can come ahead, we have seats ahead. So if you all could please shift ahead, including my friend who is in the audience, please be the motivation for everybody to come in the first row. क्योंकि इसका live link, it is already live on the Habitat YouTube channel, तो भरा हुआ लगना चाहिए है ना. हमारे performers भी जब भी देखेंगे तो उनको भी मज़ा आना चाहिए. It should be a flex. Okay? Okay, is everybody comfortable? Okay. Do I look restless, guys? Be honest. No? Okay. कहाँ से travel करके आए हैं सब? मैम आप कहाँ से आए travel करके? पुणे से. You have come to perform? Oh, lovely. Where have you come from? गोरेगांव. Okay. आप लोग कहाँ से travel करके आए हो? विलेपाले. Okay, नज़दीक वाले. कोई दूर से पुणे उन्हें घाटकोपर मुलुंड Pune? Okay, we have Pune. Ahmedabad, yes. All of these are my friends actually. Africa, Ahmedabad, all of them. But so nice, yaar, so nice. I am Keshvi. I'm going to be the host today for this open mic. This is my first time hosting here. Otherwise, I do this professionally. I host events. This is what I do. And I've performed here 2 years ago. And I performed a piece. And since then, I wanted to experiment something like this. So yes, this is my first time. Whose first time is it performing here at Habitat? You're performing for the first time? Okay, great. Great, great, great. Amazing. I love the energy already. हम शुरू करें उससे पहले कुछ रूल्स हैं, ठीक है. पहला तो ये है कि वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं तो टाइमर है, ठीक है. सब ईच पार्टिसिपेंट को 4 मिनट्स मिलेंगे. 3 minutes 30 seconds पे पीछे से लाइट होगा, which will be your indication that you have 30 seconds left. Okay, and I would suggest that do not start any new piece when there is 30 seconds left. Okay, and at 4 again there will be a light from there, and even after then if you don't stop, the mic will automatically stop. Okay, because we have to give everyone enough time. Okay, everybody has to perform. Even I'm going to perform. So, and there's another show that has to be started. Okay, so let's respect everybody's timelines. Okay, and secondly, जब भी कोई इधर आके perform कर रहा है, all the artists would know this. Okay, nothing bigger than clapping or hoots for them. ठीक है, ये आप सबसे बड़ा कोई तोहफा अगर एक आर्टिस्ट को दे सकते हो तो वो आपकी तालियां हैं. और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इरशाद जो भी है स्टेज पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ मोटिवेट देम. एंड जो भी पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं प्लीज़ डू नॉट, we are all very at Habitat. I have visited so many shows. We are all a very supportive community. Okay, so do not worry if you even fumble or stumble. We're all here. We're all here to uplift each other. So yes, that's that. And you all can go right now to Habitat's YouTube page. You will find the live link. मैं आपको अभी time दे रही हूँ. You have 1 minute quickly. 30 seconds, not 1 minute. 1 minute is too much. Okay, 30 seconds. You can find the link if you want to send it to your family, friends who couldn't come here. So you can do that. And yes, you will get your photos within 1 week to your Instagram from Habitat. ठीक है? Otherwise, you have the live link already. You can search the Habitat and you will find the YouTube page there, and you will find the live link that is already there. Okay? Are we ready? Are we ready? Are we ready? Yes or no? Okay. एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Everybody, come on, everybody. Louder, louder. Amazing. Okay. So this is how we are going to start. Okay. ऐसे ही energy हमें बरकरार रखनी है until the end for every performer. And मैं बहुत ही excitement में stage पे आ गई when I forgot the writing pad जिसमें सारे performers के नाम थे. Thank you so much. ये होता है. I'm hosting for the first time and I just ran. I actually came running. I have recently shifted to Andheri. That is why I was asking you all कि आप कहाँ से आए हो. I used to live in Ghatkopar, okay, for 3 years now. And it was my dream since then कि मुझे अंधेरी ही shift होना है.
So now the thing is, wherever I'm traveling or wherever I have to go, my Mumbai math is not mathing. I am not able to reach on time, and it's a serious issue that I need to work on. So this is why today I came running from Khar road station that, oh my God, I am the host, I cannot be late. So okay, हम अंधेरी में जो शिफ्ट हुई उसकी बातें मुझे आपके साथ कुछ करनी है, वो मैं करूँगी after some performers have performed, and we will start with this energy itself. And I would like to invite on stage our first performer of the evening, Vidarbha. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Come on, over to you. हेलो, हाय हाय. मोस्टली मैं रोमांटिक लिखता हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि कुछ पहले मोटिवेशन से शुरू करते. ठीक है. तो इंडिया की यूथ को ना बहुत कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते. तो लेकिन क्या है ना, अगर आप घोंसला छोड़ोगे नहीं तो उड़ना सीखोगे नहीं. तो उसी पर है कि चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने, चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने, तो फिर उतनी मेहनत कर कि धीरे धीरे काम बने. घर में रहकर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी आखिर तक, घर में रहकर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी आखिर तक. राम को भी वनवास मिला, वो तब जाकर श्री राम बने. ठीक है. तो बैक टू मोहब्बत. क्या है ना, कभी कभी आपको अगर सब कुछ भी मिल जाए, लेकिन जो चाहिए, जो शख्स चाहिए, वो अगर नहीं मिले, तो फिर कुछ मिलने का फ़ायदा नहीं रहता है ना. तो उसी पर है कि जो हमने सोच रखा है कभी वैसा नहीं होता, जो हमने सोच रखा है कभी वैसा नहीं होता. कभी पहली मोहब्बत का सफ़र पूरा नहीं होता बिना तेरे, कभी पहली मोहब्बत का सफ़र पूरा नहीं होता. तुम्हारे बिन अधूरी ही रहेगी ज़िंदगी मेरी, तुम्हारे बिन अधूरी ही रहेगी ज़िंदगी मेरी. खुदा के बिन कोई मंदिर कभी पूरा नहीं होता. और जब दोस्त आपको आके कहते हैं कि भाई भूल जाना, चली गई है वो, भूल जा, लेकिन आपको पता है कि भूल तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी के सपने देखे थे. तो इस ज़िंदगी में भूलना तो नामुमकिन है. कहा है कि आगे की ज़िंदगी को बचाने के लिए दोस्त, कुछ हादसे होते हैं सिखाने के लिए दोस्त. आगे की ज़िंदगी को बचाने के लिए दोस्त, कुछ हादसे होते हैं सिखाने के लिए दोस्त. दिल पे उसका नाम मोहब्बत से लिखा है, एक ज़िंदगी लगेगी मिटाने के लिए दोस्त. और मुझे लगता है कि मोहब्बत जब ज़िंदगी से जाती है ना, तो वो सिर्फ अकेली नहीं जाती, अपने साथ ले जाती है खुशियाँ, रातों की नींद, चैन और सुकून भी, है ना. तो उसी पर है कि तुम्हारे बाद कोई ख्वाब फिर संजो न पाए हम, तुम्हारे बाद कोई ख्वाब फिर संजो न पाए हम. दोबारा दिल की मिट्टी में मोहब्बत बो न पाए हम. तुम्हारे बाद यूँ तो ज़िंदगी हंसकर गुजारी है, तुम्हारे बाद यूँ तो ज़िंदगी हंसकर गुजारी है. तुम्हारे बाद लेकिन खुश कभी भी हो न पाए हम. और एक गज़ल है कि चांद को भी बेकार बताया करते हैं, चांद को भी बेकार बताया करते हैं, हम लड़के जब प्यार जताया करते हैं. चांद को भी बेकार बताया करते हैं, हम लड़के जब प्यार जताया करते हैं. वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, उसको ये एहसास दिलाया करते हैं. और इस उम्मीद में कि तुम एक दिन आओगी, इस उम्मीद में कि तुम एक दिन आओगी, हम कमरे को रोज़ सजाया करते हैं. यह कहकर कि वक्त बदलता है सबका, ये कहकर कि वक्त बदलता है सबका, हम लोगों को ख्वाब दिखाया करते हैं. और शेर आखिर की उन लोगों में कितनी हिम्मत होगी जो, उन लोगों में कितनी हिम्मत होगी जो देश की खातिर जान लुटाया करते हैं. थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम. क्या बात है यार, एक बार और वापस जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. कम ऑन एवरीबॉडी. यस, हम एक दो परफॉर्मर्स को बुलाएंगे, फिर मैं अच्छे से आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी और फिर हम मेरी बातें करेंगे. ओके. Up next, I'd like to invite on stage Harsh. Huge round of applause for Harsh, everybody. Come on, come on, come on. Over to you, Harsh.
तो दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं एक शायर हूँ। तो एक छोटे से शेर से शुरुआत करते हैं। ऐसा अपना नाम करना चाहिए था, तुझे खुद पर थोड़ा काम करना चाहिए था। ऐसा अपना नाम करना चाहिए था, तुझे खुद पर थोड़ा काम करना चाहिए था। खेल कर थक गया होगा तू, मेरे बाद तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए था। और उससे बदनाम तो मैं हूँ, और उससे बदनाम तो मैं हूँ, मुझे हर कीमत पर वही बदनाम चाहिए था। तो दोस्तों वो वाली लड़कियां नहीं होती, कोई है क्या यहाँ पे? लड़कियां बहुत कम है। वो लड़कियां नहीं होती मेकअप 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 वाली, जिसके चेहरे पे चमड़ी का मेकअप ज़्यादा होता है, लेकिन असलियत सुबह पानी बता ही देती कि कौन कितने पानी में। तो मैं उसके खूबसूरत शख्स पे मैंने एक शेर लिखा कि जितनी भी करीब रहती दूर ही लगती है, उसकी तलब कुछ ऐसी है जितनी मिल जाए कम ही लगती है। उसके ना मिलने पर आंखें नम सी लगती है, मेकअप उस पर जचता नहीं यारो, ऐसे हकीकत में भी वो ख्वाब लगती है। बाकी लड़कियां सस्ती सवरती अपना वक्त ज़ाया करती, वो सिर्फ एक बिंदी पर लाजवाब लगती है। तो दोस्तों किसे पता है नमक कहाँ पाया जाता है? किसे? तो दोस्तों मैंने कहीं नमक पाया, तब मैंने एक शेर लिखा कि ज़िंदगी के कश्मकश में कौन किसका कब होता है, ज़िंदगी के कश्मकश में कौन किसका कब होता है, कैसे जाने किसे कितना दर्द होता है। हंसते चेहरे पर भी छुपा गम होता है, और ये अश्क जब होठों पे जा गिरे तब समझा इन आंसुओं में कितना नमक होता है। तो दोस्तों किसी का एक तरफा प्यार रहा है? वो तो हमारे नहीं होते, लेकिन हम हर कीमत पर उनके ही होते हैं। दोस्तों एक तरफा इश्क में का एक शेर मैंने लिखा कि एक तरफा इश्क भी एक सीख है, उसका दिख जाना भी एक भीख है। थैंक यू। एक तरफा इश्क भी एक सीख है, उसका दिख जाना भी एक भीख है। सोचा कर लूँ इज़हार मोहब्बत उसे, फिर उसने कहा दोस्त बनकर रहना ही ठीक है। तो दोस्तों सब जिस्मों में उलझते जा रहे हैं, नहीं माना रूहानी प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो दोस्तों तब मैंने एक शेर लिखा कि कपड़े उतारने के दौर में भी मुझे तेरे सर का दुपट्टा प्यारा था, तुम्हें जान कहकर पुकारना मुझे अपनी जान से भी प्यारा था। कपड़े उतारने के दौर में मुझे तेरे सर का दुपट्टा प्यारा था, तुम्हें जान कहकर पुकारना मुझे अपनी जान से भी प्यारा था। और कोई करता मोहब्बत तेरी रूह से मुझ जैसा, फिर तो मुझे वो तीसरा शख्स भी प्यारा था। तो दोस्तों एक शेर है कि ज़रा गौर से सुनना कि मोहब्बत हुई है जवानी में, सोचा नहीं क्या होगा रवानी में। मोहब्बत हुई है जवानी में, सोचा नहीं क्या होगा रवानी में। कब तक ये मजनू लटकता रहेगा पंखों पर, कभी कोई लैला भी तो जाए किसी कहानी में। थैंक यू। तो दोस्तों नवरात्रि आ रही है, सभी को पता है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी नहीं, यहाँ पे जो बैठे हर किसी की ख्वाहिश होगी कि नवरात्रि के साथ उनके साथ नवरात्रि बिताए। तो मैंने इस पे लिखा है कि सोच रखी थी जिंदगानी जैसी, कभी तो कुछ पूरा होगा। सोच रखी थी जिंदगानी जैसी, कभी तो कुछ पूरा होगा। और सुनने में इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा, नवरात्रि आ रही है, इस कहानी की तरह नवरात्रि का हर दिन तेरे बिना अधूरा होगा। तो दोस्तों एक टाइम हो चुका है, तो एक आखिरी शेर है कि रानी मेरी कहानी खराब हुई है, मेरे किरदार पर दाग नहीं लगा। और तुम ही आई थी मेरे होठों के करीब, मैं तेरे आसपास भी ना था खड़ा। तलब नहीं मुझे तेरे जिस्म की, खैर तुझसे प्यार था बड़ा। तलब होती जिस्म की तो मान रानी, मेरे आसपास बाजार था बड़ा। थैंक यू सो मच। Amazing. I love the energy. I don't think I have to motivate you to keep clapping, and I love this. Lovely audience. For any artist who comes up here and talks on stage, the biggest thing is receiving the amount of claps. So, yes, good going, guys. I love the audience. And इसी को बरकरार रखते हुए I'd like to call on stage our next performer, आदर्श सिंह. जोरदार तालियां हो जाए आदर्श के लिए. Come on, everybody. Over to you, Adarsh. Thank you. आवाज़ आ रही है सबको? भाई ने जो बोला उसी के भाव को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अरे मज़ा आ जाएगा। एनीवेज, तो आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। जो भाई ने बोला उसको मैं कहानी के तौर पर सुनाने वाला हूँ
ये मेरे साथ हुआ था। तो मेरे से लोग पूछते हैं, लोग क्या, जो मेरी महिला मित्र हैं वो पूछती हैं कि यार तू अच्छा लड़का है तो फिर तुझे लड़की क्यों नहीं मिल रही, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रही। तो उसका जवाब ये है कि आई मोहतरमा मृग नैना ले, आई मोहतरमा मृग नैना ले, गाल गुलाबी नैना काले, इंडो वेस्टर्न कपड़े डाले, महंगे महंगे शौक है पाले, खुद को अब हम कैसे संभाले। अरे हम का कोई अंधा है भैया, कुछ भी कहो, बड़ा रिस्की धंधा है भैया। अरे हाथों पर जब हाथ थे फेरे, खिल खिल मनवा खुद को हेरे, बात बात पर हमको घेरे, जो दुख इनके वो अब मेरे। अरे जिगर क्या तू जान भी ले रे, कसम खुदा के अब हम तेरे। लेकिन ये तो किसी और का चंदा है भैया, साला हम तो कंधा है भैया। वो कहती, सुनो ना मैं जो कहती हूँ, बड़ी दबी दबी सी रहती हूँ, तुम नहीं तो और कौन सुनेगा ये सब जो मैं सहती हूँ। हमने भी जोश में छाती पीटी, हाँ हाँ क्यों नहीं, पुराने आशिक है कोई न्यू नहीं। अरे तुम दिक्कत तो बोलो, साला चुटकियों में कर देंगे यूं सही। अरे दिल में तुम्हारे पार्टी का झंडा है भैया, तो क्या हुआ जो सिर्फ हम कंधा है भैया, है कि नहीं। रात रात फिर हुई है बातें, साथ साथ हम आते जाते, दारू कम जरा चखना खाते, लिखते हम वो सुर थे लगाते, दूर कतई ना जाना चाहते। साला क्या ही दिन था क्या ही रातें। अरे नाचे हैं पकड़ के हम उनकी बैया, फिर क्या हुआ, थे तो हम कंधा ही ना भैया। फिर हमने भी एक दिन कमर कसी, बोला दिल में जो बात फंसी, तुम प्रियतम मेरे दिल में बसी। अरे छोड़ो अब ये रसाकसी, क्या दोगे तुम साथ हमारा, चलो करो हवाले अपनी हंसी। तभी उन्होंने अपने फ़ोन में लड़कों की लाइन दिखाकर पूरा ठंडा कर दिया, साला एक झटके में कंधा कर दिया। पीछे हमने पैर थे खींचे, आग गड़ा के नीचे नीचे, बोला हमको यार आना दो, नहीं चाहिए कुछ आगे पीछे। खुश रहो तुम जहां भी जाना, समय के चलते भूल ना जाना, भैया हमको यारी निभानी, कहता है जो कहे जमाना। और तुम्हारे बारे में गलत सोचूं, दिमाग इतना गंदा थोड़ी है भैया। और हमारा क्या, हम तो थे, हैं और रहेंगे कंधा ही ना भैया। वो बोली, आदर्श तुम तो मेरे यार हो, पहले आखिरी नहीं लेकिन सच्चे वाले प्यार हो, कितनी सुंदर तुम्हारी आंखें, हाय। चलो अब सुनने को तैयार हो। फिर जो ये चक्कर शुरू हुआ, जो सब भी सुना था टुरू हुआ, वो अपनी बातें रेलती जाती। वो कृष्णा मैं कुरू हुआ। फिर एक दिन कहना ही पड़ा, भर गया भैया हमारा सुनने का घड़ा, अब और ना हमको उलझाओ, पता है तुम्हारे चक्कर में कितने से लड़ा। वो कहती, आदर्श यही तो दोस्ती का फर्ज है, तुमने तो उतारा सिर्फ अपना कर्ज है, इतनी ही दिक्कत है तो दूर ही रहो, हमारी जिंदगी में पहले से बहुत मर्ज है। हा क्या धक्का था, साला चलती बात में फोन रखा था। और उनको मैं लाख समझाऊं, उनको समझ नहीं आना, ये पक्का था। यार वापस एक बार तालियां हो जाए, वापस जोरदार तालियां हो जाए। यस, आई वॉज पर्सनली वेरी सैड कि माइक बंद हो गया, बट रूल्स आर रूल्स। सो यस, फेयर टाइम टू एवरीवन हु इज़ परफॉर्मिंग। एंड काफ़ी रिलेटेबल पीस था यार। मैं पीछे बैठ के ऑडियंस को देख रही थी, वाइल ऑफ कोर्स आई वाज लिसनिंग, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट ईच अदर। पता है, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन द ऑडियंस, व्हेन यू कैन कनेक्ट टू देम with their own stories while reciting your own story. तो own story की बात हम कर रहे थे, तो by the way थोड़ा सा मैं see how I connected that. Okay, so when I was little, I used to go to dance classes and I used to do dance shows. I loved dancing. Since I was a kid, I used to do 1,000, 2,000 seater auditoriums, and then I grew up and then life happened and then
डैड ने मना किया. It's not a real career apparently. So yeah, जो भी है, life happened and I wasn't allowed to dance and I wasn't allowed a lot of things, but I fought my battle and then I finally came to Bombay, which was my dream since I was a kid. People talk a lot about Bombay. बहुत fast life है यार, बहुत सब भागते रहते हैं. You know, I love that. I actually love that. I want to hustle. I love this fast life. I come from a very small town in Gujarat called Rajkot. Yes, I have my Gujju friends, a lot of Gujju friends here. So it's a very slow life there. दोपहर को लोग सो जाते हैं उधर. आप अगर पहली बार आओगे तो ऐसा लगेगा कि कर्फ्यू वर्फ्यू है क्या भाई, दंगे हो गए क्या इधर, वापस. Also, I'm born in 2002, so yeah. So that laid back and crazy schedule, man. खुद का धंधा होता है सबका. Saturday, Sunday, मज़े करो जब भी. That kind of a life to this. But I knew what I was signing up for. Okay. So then I came here and then I started learning so many things. ठीक है, मैं कॉलेज के लिए आई थी. कॉलेज ख़त्म होने के बाद, ख़त्म जब होने वाली थी, पापा का कॉल आता है कि बेटा अभी देखो पढ़ाई हो गई है तो अभी वापस आ जाओ. वापस तो मुझे जाना नहीं था, क्योंकि यार एक बार इधर रह के ना, एज अ गर्ल, आई थिंक एवरी गर्ल विल अग्री टू दिस हु लिव्स इन बॉम्बे, इज दैट टू एक्सपीरियंस दिस लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, to be able to go out at any hour of the clock. I have traveled alone in local at 3 a.m. Traveled alone for work. I have never once felt unsafe. So ये आज़ादी चखने के बाद मैं कैसे वापस, 7 बजे कर्फ्यू है मेरा घर पे, 7 बजे तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलते इधर. Anyway, so all of this happened and then my father was like, you have to come back, and I'm like, okay, अब इसका solution क्या है? Is that I get a good job. Now I have studied mass media and communication, जिसमें let's be real, all of us knows that it's not a real degree. Degrees की degrees के circle में ज़रा सी इज्जत नहीं है ये degree की. And of course there was nothing like placement from my college, so I was like, I have to get a job and I have to prove them. Okay, and then I got a really good job. Really good job. It was actually unbelievable. पहले मुझे लगा scam है, कोई मुझे सामने से इतनी अच्छी जॉब कैसे ऑफर कर सकता है. But then it turned out to be true. And then the next 6 months of my life were hell. I won't name the company. Jio. So now I'm a Guccio. So it was such a big banner. Okay, मेरे घर वाले दादा दादी सब न्यूज़ चैनल बन गए थे कि इसका तो यहाँ पे जॉब लग गया, इसका यहाँ पे जॉब लग गया. ओ माय गॉड, पागल हो रहे थे सब. आई वाज लाइक ओके, इतना भी ठीक है, फाइन, इट्स पेइंग माई बिल्स एंड आई एम इन बॉम्बे. बट यार 6 महीने होने के बाद कुछ तो ऐसा लगा, एक्चुअली इन within 2 months only I realized this place is not for me. Amazing place to work in. NHQ is in Ghansoli, Navi Mumbai, if anyone of you knows. Huge 300 acres space, job, really nice place. हेलीकॉप्टर दिखता है, अंबानी जी आते हैं जाते हैं, सब दिखता है, मज़ा आता है. मैं सब बाय बाय करती रहती हूँ. फिर एक दिन बाय बाय करना ही पड़ा. 6 महीने बाद आई रियलाइज ये नहीं होगा. आई एम नॉट मेड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब. ठीक है, सो आई लेफ्ट and then I started hosting again. But the problem is there's no consistency in my payments, but there is consistency in paying rents and bills. So I was like, चलो कोई बात नहीं, शादी की सीज़न है, let's risk it. शादी की सीज़न में तो फुल इवेंट्स पे इवेंट्स किए, फुल एवरीथिंग. अप्रैल आते आते वापस कि अब रेंट कैसे भरूंगी मैं. So desperate with monthly paycheck system that I joined another agency. And I became another corporate mazdoor. And then after 6 months, I was burnt out. Okay, it's like, okay, at least this is paying my bills. Rent भर रहा है, CC का बिल भर रहा है, electricity बिल भर रहा है, बस है. बाकी मैं वड़ा पाव खा लूँगी, चलेगा. But after that, I think I took a trip to Goa, solo trip to Goa. And while I was sitting at the shack,
all alone. समंदर है मस्त. And I hadn't realized I hadn't taken a trip since 7 years, apart from work trips, which is mostly in Gujarat. And something strike, okay, something I was like, नहीं करनी है job. क्यों कर रही हूँ मैं ये? Why am I doing this? So I left again. And the story hasn't changed. Okay, I'm still struggling. अभी भी month end आता है तो अभी भी अकाउंट देखने की भी हिम्मत नहीं होती है. Okay, but what I've realized after 2 corporate experiences is that I'm absolutely not made for corporate. क्योंकि ऐसा भी नहीं था यार, दोनों जगह I was doing good, but didn't happen. So this is why I'm here on stage again, hosting at Habitat, and इसी के साथ हम continue करेंगे. This was my थोड़ा पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है व्हेन वी डू दिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर नेक्स्ट परफॉर्मर साक्षी चौबे. जोरदार तालियां हो जाए साक्षी. ओवर टू यू. I think I'm audible. Okay. Hi, I'm Sakshi Chaube. I'm a chartered accountant by profession and hopefully to be poet, at least in process. तो शुरू करते हैं. यार प्यार वाला तो मेरे से होगा नहीं ऑनेस्टली, तो पहले ही आई विल सरेंडर. लेट्स ट्राई जो हो सकता है. तो शुरू करते हैं. महफिल है सजी हुई, बताओ आज सुनने तुम क्या आए हो. कि थोड़े इंतज़ार में तो तुम भी थे, न जाने कौन आएगा, क्या लाइनें सुनाएगा, तुम्हारा दिल लुभाएगा या बेचैन छोड़ जाएगा. तालियां गालियां न जाने वो क्या पाएगा. वो क्या है ना, अरसों बाद जब इस मंच पर खड़ी हूँ, थोड़ी बेकरार थोड़ी बेसब्र हूँ कि पन्ने पर लिख के जो लाई थी कहानी, उसकी जगह जो दिल में दफन है अरसों से, वो बात है सुनानी. चलो टाइटल बताकर सारे राज नहीं खोलूँगी, मैं कौन हूँ अपनी कविता से बोलूँगी. हम जैसों की तुमको कहानी सुनाऊँ क्या, ये मंच कर्म भूमि मेरी तालियाँ कमाई हैं, समाज का मैं आईना काम ही लिखाई है. पर कितना आसान है ना अपने अस्तित्व को ये कहकर दर्शा देना कि मैं लेखक या राइटर हूँ, सीए या डॉक्टर हूँ. क्योंकि असल ज़िंदगी में जब भी कोई पूछे कौन हो तुम बातें बड़ी बताते हो, राई का पहाड़ और अपनी सारी सफलताएं गिनाते हो. हर छोटी बड़ी बात को तुम सोशल मीडिया पर एक जश्न सा दिखाते हो, पर फिर क्यों अपनी हार को तुम एक राज सा छुपाते हो. देखो बात बड़ी सिंपल है. बंद आँखों से रात को आने वाले सपने हकीकत नहीं, ये सुबह उठते पता चल ही जाता है. पर कुछ अरमान होते हैं ना, जो हर रात सोने से पहले कानों में गूंजते हैं, जो हर रात सोने से पहले कानों में गूंजते हैं, पर फिर भी अब सॉरी पर कुछ अरमान होते हैं ना, जो हर रात सोने से पहले कानों में गूंजते हैं, जो हमारे जहन में दिन रात उपजते हैं, जो बस सोने नहीं देते. फिर चाहे वो सपनों वाली डिग्री हो या मनचाही नौकरी, या हो वो रंगमंच जिसमें तो तुम दिल खोल कर बोलना हो, या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे तुम्हें ना जाने कब से तोड़ना हो, या वो किताब जो अब तक छपी नहीं, वो कविता जो अब तक लिखी नहीं, वो मकान जिसकी नींव अब तक डलनी है, वो मंजिल जिसकी सीढ़ी अभी चढ़नी है. पर क्या अंतर है इन सपनों में जो हर अगली सुबह के साथ ओझल हो जाते हैं, और उन ख्वाबों में जिन्हें जीने की उम्मीद में हम खुद गुम हो जाते हैं. क्योंकि परिस्थितियाँ तो सारी ही क्षणिक हैं, चाहे विजय की हो या पराजय की. पर प्रश्न तो असली ये है कि क्या हम इन परिस्थितियों के अधीन हैं, या सार्वभौमिक है अस्तित्व हमारा जो किसी परिस्थिति के अधीन नहीं, जो किसी स्थिति स्थल या स्थान से डगमगाता नहीं, जो पराजय से घबराता नहीं, जो जीत और हार को अपनाता है और जीत की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है. तो तुम भी लिख सकते हो अपनी कहानी, अपनी लड़ाई की, जीत की भले नहीं पर एक साहसी सिपाही की. थैंक यू.
क्या बात है यार, loved your piece and that is actually so true. Even while you were saying, हम सबको अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, बट नो बडी नोज अबाउट द फेलियर्स. दिस यूज टू हैपन विथ मी. मुंबई आके लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इसकी लाइफ तो मज़े मज़े हैं भाई, रोज़ बाहर जा रही है, मरीन ड्राइव जा रही है, वर्सों अभी जा रही है. विल आई रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड वेल आई एम क्राइंग एंड हैविंग अ ब्रेक डाउन इन द मिडल ऑफ अ ट्रेन क्योंकि पापा ने बोला है कि घर आ जा? तो ये तो मैं स्टोरी पे नहीं डालूंगी ना. सो दैट्स सो ट्रू. And also failures. When I was in Rajkot, okay, again, a very small town and blessed with good people in my life. I'm very extrovert. I need people always around me to give me energy. People give me energy, I feel. So, failure, I wasn't very much known to failure. Kabhi aisa hua hi nahi tha. Very privileged like that. And I would agree absolutely on that. But when I came here, tabhi aisa ek पहली बार लाइफ में कभी फेलियर फेस ही नहीं किया था, तो तभी हुआ तो ऐसा लगा कि यार इसके साथ तो डील करना आता ही नहीं है. पर देयर इज दिस 2-liner ओके जो मुझे बहुत पसंद है एंड मतलब पकड़ देखो तुम, इसमें ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है. तो परवीन शाकिर जी लिखते हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है. मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है क्या. सो yes, with this let us call upon our next performer Lavish Jain. जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका. Over to you. हाय हाय हाय. बहुत रश में मैंने एक 8 लाइंस लिखे थे मैंने यहाँ आने से कुछ समय पहले, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सुना देता हूँ. एक और चीज़ है कि इस फरेबी जहाँ में हकीकत कहाँ दिखाई जाती है, इस फरेबी जहाँ में हकीकत कहाँ दिखाई जाती है, लालच के कांच बचाने के लिए सच्चाई की ईंटें छुपाई जाती है. लालच के कांच बचाने के लिए सच्चाई की ईंटें छुपाई जाती है. अंधे कानून के हाथों को नोटों की बेड़ियों से बांधते हैं, अंधे कानून के हाथों को नोटों की बेड़ियों से बांधते हैं. इंसान के ज़बान की अहमियत उनकी जेबों से नापते हैं. समान हक के ढोल को अधूरे कानून से बजाया जाता है, समान हक के ढोल को अधूरे कानून से बजाया जाता है. मनचाही आवाज ना निकलने पर हमेशा कमजोर को फंसाया जाता है, मनचाही आवाज ना निकलने पर हमेशा कमजोर को फंसाया जाता है. खुद सक्षम होते हुए मोहब्बत का मुआवजा मांगते हैं, एलिमनी. खुद सक्षम होते हुए मोहब्बत का मुआवजा मांगते हैं. आजाद करके भी उन्हें कैदे कानून में मारते हैं. अरे तुम क्या रोते हो कि मोहब्बत की थी हमने पलकों पर रखा था उसे. अरे तुम क्या रोते हो कि मोहब्बत की थी हमने पलकों पर रखा था उसे. कुछ समय इंतजार करो और देखते जाओ अब फरेब के लिए ये अपने ईमान को और कितना गहरा गाड़ते हैं. अब बिना टाइम वेस्ट किए एक और मैं सुनाना चाहूँगा कि ये वहाँ पे लिखी थी मैंने कि मुनव्वर साहब के एक शेर से शुरू करूँगा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. तो मैंने कुछ यूँ लिखा था कि खैर तो मनाती है दुनिया पर न जाने क्यों बदले में कुछ मांगती है. खैर तो मनाती है दुनिया पर न जाने क्यों बदले में कुछ मांगती है. हज़ारों दफ़ा बयां कर दो फिर भी एतराफ़ चाहती है. वैलिडेशन. हज़ारों दफ़ा बयां कर दो फिर भी एतराफ़ चाहती है. समझ नहीं आता था कि ये बंधन है या सौदा है, समझ नहीं आता था कि ये बंधन है या सौदा है. तिजोरी तो मैं खोल दूं पर उसमें भी एक वादा है. कौन अपना कौन पराया किसने किसको जाना है. इस कौन अपना कौन पराया किसने किसको जाना है. इस तेज दुनिया की हलचल में बस सबको अपना ठिकाना है. इसी हलचल के बीच मैंने एक हाथ अचानक थामा था, इसी हलचल के बीच मैंने एक हाथ अचानक थामा था. शीश उठा कर देखा तो खुदा ने जननी का वेश धारा था. गले लगाया तो हलचल का शोर एकदम से शांत हो गया. जैसे ही अपने पास सुलाया गोदी से ब्रह्मांड हो गया. गले लगाया तो हलचल का शोर एकदम से शांत हो गया. जैसे ही अपने पास सुलाया गोदी से ब्रह्मांड हो गया. आँख खुली तो शांत सा जग अब सूना सा लगने लगा. इस दिखावटी दुनिया में तेरी मीठी डांट का काल अब चुभने लगा. बचपन में कैसे जिद करने पर जोर से मुझे डांटती थी. ऊंची आवाज़ में पापा से बात कर लूँ तो आंख दिखाकर मारती थी. आज उसी एक डांट के लिए हर रोज़ उससे जिद करता हूँ.
तेरे हाथ के कोमल स्पर्श के लिए हर रोज मैं उससे लड़ता हूँ। उसे पूजना तो तूने ही सिखाया था ना माँ, उसे दिल से याद करो तो सब पूरा होता है, ये तूने ही बताया था ना माँ। तूने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा वैसा किया, तूने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा वैसा किया, उसके बावजूद मेरे सर से तेरा आंचल उसी ने हटाया था ना माँ। माँ आज भी तेरी बहुत याद आती है, आज भी मेरी ज़बान तेरे हाथ से खिलाने वाले के लिए तरस जाती है। तब तुझसे दूर होने पर क्या लगता है उसका एहसास नहीं था माँ, जब लौटने पर तू ना मिली उस जगह घर का आभास नहीं था माँ। बिना तेरे हाथ की मिठास के किसी निवाले में स्वाद नहीं था माँ, बिना तेरे आशीर्वाद के अब कोई त्योहार खास नहीं था माँ। मेरा अस्तित्व तुझसे है, तेरे बिना तो मेरा नाम भी नहीं था माँ, और जो सुकून तेरी गोद में है वो कहीं और ब्रह्मांड में नहीं था माँ। ये कविता मैंने थोड़ी और बड़ी लिखी थी पर समय के अकाल की वजह से मैं पूरी सुना नहीं पाया। इंस्टाग्राम पे सुनते हैं। चलिए शुक्रिया। I think we have really some really talented people amongst us जिनके लिए 4 मिनट बहुत कम पड़ रहे हैं. So you can always come again. Okay. Please, आपको पता ही है, you have come here so you know the process. So keep participating. आया करो यार. I love when artists come together. I love this community where we uplift each other. So yes, 2 people today जिनको time कम पड़ा है. I would motivate you to please keep participating so that we can also watch your content on your Instagram. By the way, just one small thing, अगर आप कोई भी piece perform कर रहे हो and if you feel कि इसमें disclaimer देना चाहिए, then please go ahead and do that because sometimes it can be sensitive for some people. I am one of the some people. So considering for everyone. Okay, आगे बढ़ते हुए I would like to call on stage Ranmal Jain. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Come on everybody. Over to you. थैंक यू सो मच. हेलो 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 हेलो, कैसे हो? देखो, एक सिंपल प्रोसेस है, इरशाद फिर वावा और ऐसे चलते रहेंगे. इरशाद के एक झलक ही तो देखा था, तुम्हें मन भरता कैसे? तुम मौत आंखों में लेके आई थी, अब भला मैं डरता कैसे? जहर खरीदने निकला था, अमृत निकला, मैं मरता कैसे? और मेरी कब्र पे लाल साड़ी पहन के आई हो, अब साला तारीफ करता तो करता कैसे? देखो लड़कियां, वो एक नहीं होता है कि हम फ्यूचर का भी सोचते हैं. मेरे को लगता है कि मोमेंट में जीना चाहिए. कि आसमान खुद आज चलकर घर तेरे आया है, वो चांद देखते सब है, नसीब में मेरे आया है. लोग कहते हैं उसका छूना बड़ा कमाल है, उसके हाथों में किस्मत है, उसके होठों पे कुदरत है. महबूब मेरा मोहब्बत झोली भर कर लाया है. करामात देखो कि खुदा खुदा आज डोली बन कर आया है. उसने 7 जन्म लिखे हैं तेरे और मेरे साथ में, पर यार रुकना देख, ये लम्हा भी तो 7 जन्मों से लड़ कर आया है. भाई मैं ऐसे ही कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरे को बढ़िया मजे आते हैं. और मेरे को एक चीज़ जो मैंने देखी क्या ना, अपना ये जो पेन के साथ रिलेशन है राइटर लोगों का, ये मतलब ये अनएक्सप्लेनेबल है. मैंने कोशिश की है, मैं बता देता हूँ कि इस कलम को शायद किसी ने अमृत जल पिला दिया. लगता है कि शब्द तो मिट जाते हैं पर दर्द नहीं. बदल तो सकता हूँ मैं ये कलम किताब, पर यार उनके अर्थ नहीं. मैं साथी ढूंढ रहा था कि जो सिर्फ मेरा हो. इन रंगीन शब्दों में न जाने कितना प्यार है. समझते समझते वक्त लग गया कि यार ये कलम और स्याही मेरे असली यार है. और मुस्कुराहट तो तब आती है जब ये कलम नाजुक से पन्नों को छू कर, कि वो एकदम से वो नहीं है, नाजुक से पन्नों को छू कर उन्हें एक एहसास बनाती है. सुबह को शाम और शाम को रात बनाती है. कुछ इस तरह कलम है मेरे सीने के पास, एक नन्ही सी जगह में अपना आशियाना बनाए बैठी है. और शब्दों के काफिलों के संग मुझसे कहती है कि कुछ इस तरह लिख इतिहास अपना कि खुदा भी मुस्कुरा बैठे, किसी की जिंदगी नहीं किसी की मौत को ठुकरा बैठे. टू ऑल ऑफ एक मेरी चीज़ है कि जब मैं थोड़ा सा मैंने वो डिप्रेशन वाला टाइम देखा है, तब पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है. फिर मेरे को किसी ने बाद में बताया कि ये डिप्रेशन होता है. तो तब मैं ना खुद से एक बात बोलता था कि अब जो हार मान चुका हूँ तो मुस्कुरा ही लेता हूँ. हाँ, टूटना तय है, हौसला बिखरा ज़रूर है, पर अब जब मंजिल गुमनाम है तो खुद को खुद का पता पूछ ही लेता हूँ. अब जो हार मान चुका हूँ तो मुस्कुरा ही लेता हूँ. मैं तन्हाई क्या महसूस करूँ, मेरे तो ख्याल ही हर दिशा के हैं. अब जब मोड़ पर खड़ा हूँ तो खुद को थोड़ा भगा ही लेता हूँ. भागते भागते खुद की खुद से पहचान करवा ही लेता हूँ. अब जो हार मान चुका हूँ तो मुस्कुरा ही लेता हूँ. बढ़िया. एक तो हम है ना, एक तो क्या आशिक लोग है ना, पार में एकदम यूँ पागल ही हो जाते हैं. ठीक है, तो कि खुद से लड़ाई हुई, तब पता चला कि हमसे गदर तो कोई हुआ ही नहीं. एक बार इरशाद हो ना, थोड़ा इरशाद में मजा. हाँ,
कि खुद से लड़ाई हुई, तब पता चला कि हमसे गदर तो कोई हुआ ही नहीं, हम तो मुस्कुराना भूल गए थे। ये तो आपने हंसाया, तब पता चला कि आपसा कादर तो कोई हुआ ही नहीं। हमें लगा हम ठीक है, हमें क्या ही होगा, ये तो साला जमाना सामने आया, तब पता चला कि हमसा पागल तो कोई हुआ ही नहीं। गुड यार। और एक लास्ट मिनट है फटाफट। देखो पता है वो एक मूवी आई थी 2012 करके मूवी आई थी कि दुनिया खत्म हो रही है, पता है। और अपना दिमाग भी ऐसे ही है कि यार दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मेरे लिए मैं एक बार मेरे मन में बैठ ही गया था कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर डर तो बैठ ही गया था। और 2012 में पापा ने हॉस्टल में भेज दिया, और साली सच में दुनिया खत्म हो गई। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। माय नेम इज रणवल जैन। यू बीन अ लवली ऑल, प्लीज वेलकम बाय योर होस्ट। कम ऑन, अरे थोड़ी कीप क्लैपिंग, कम ऑन। यार मैंने होस्ट ना बहुत सारे शोज़ किए हैं, ऑफ कोर्स आई डू दैट फॉर अ लिविंग, आई शुड, बट I love introducing people, calling up people on stage, but it's really nice when someone else introduces you to come back on the stage. So where are you, sir? Yes, thank you so much. Thank you so much for this. I loved your what energy, man. पीछे जो लोग सोए थे वो सब उठ के ऐसे सुनने लगे। क्या एनर्जी था, आई लव्ड इट। आई वाज लाइक इसके बाद मुझे जाना है, हाउ एम आई गोइंग टू मैच हिज एनर्जी नाउ। ओके, बट यार इसमें से मुंबई में रहने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? या यू ऑल ट्रैवल इन लोकल? नो, नॉट एनी मोर, और यूज टू फर्स्ट? या मेरा वो टाइम चल रहा है। So when I came to the city for the first time, my friend was like, let's go, I will teach you how to travel in train. So I was like, yes, let's do that. मैं मुलुंड रहती थी तभी, end of Bombay, बट मेरा कॉलेज भी घाटकोपर में था, ठीक है, तो इतना ट्रैवल नहीं था। बट ही वॉज टीचिंग मी कैसे करते हैं, ऐसे चढ़ना है, ऐसे ये करना है, यहाँ से टिकट लेना है सब, एंड आई वॉज वेरी कीनली लर्निंग ऑल ऑफ इट। और फिर टाइम आया उतरने का। माइंड यू, हम पीक आवर में ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, इतनी भीड़ भी नहीं थी। एंड जैसे ही मुलुंड स्टेशन आया, नाउ फॉर मी इट्स लाइक वो जो कर रहा है वो मैं करूँगी, वो जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे मैं क्यों अपना दिमाग चलाऊँ। ही इज़ टीचिंग मी, नो, सो आई विल फॉलो वेर एवर इज़ गोइंग। और वो ट्रेन ऐसे जैसे ही स्टेशन आया तो रुकती है ना ट्रेन, ऐसे धीरे धीरे करके फिर रुकती है। तो वो ट्रेन जैसे ऐसे आया, वो उतर गया। मैंने तो मेरा दिमाग बंद करके रखा था, वो उतर गया तो मुझे लगा मुझे भी उतर जाना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड इन लोकल, यू नो, यू चलती ट्रेन में अगर उतरना है तो, एंड इफ़ यू डोंट नो, मैं आज आपको सिखाऊंगी चलती ट्रेन में कैसे उतरते हैं 101 विद केशव हिंगू। ओके, सो यू हैव टू, इफ़ यू आर लाइक गेटिंग डाउन ऑन द राइट साइड, इट हैज़ टू बी योर राइट लेग फर्स्ट। यू हैव टू पुट योर राइट लेग डाउन फर्स्ट सो दैट यू डोंट ट्रिप एंड फॉल। बट ये मुझे 4 साल बाद समझ आया है, तब मुझे नहीं पता था। वो उतर गया एंड आई एम लाइक, भाई ट्रेन तो रुकने दे। फिर वो उतर गया तो मैंने भी ऐसे पैर डाल के, फर्स्ट डे इन बॉम्बे, द डे आई हैव बीन वेटिंग सिंस आई वॉज इन 6th grade, सिंस आई वॉज अ किड। मैं ऐसे मुलुंड स्टेशन पे लेट गई हूँ और वहाँ पे वो सब RPF वगैरह सब आके मेरे को, अरे आपको कुछ हुआ नहीं, पानी वानी दे रहे हैं मेरे को। हम लगा अच्छा चलो, लोग तो स्वीट है इधर, कुछ नहीं हुआ करके आई लेफ्ट। कैन नॉट सी दीज पीपल अगेन, सो एम्बैरेसिंग। बट नाउ आई हैव बिकम अ प्रो। अब तो मैं लटक के भी आती हूँ। आज ही मेरे दोस्त को मैं लोकल में लेके आ रही थी तो ही वाज लाइक, भीड़ तो नहीं होगा ना अभी? मैंने बोला नहीं होगा इतना तो, वैसे हम क्योंकि ऑपोजिट साइड ट्रैवल कर रहे हैं ना, चर्च गेट में बैठेंगे लोग, अभी ऐसे आते हैं सब। मैं उसको मुंबई लिंगो पूरा समझा रही थी एंड इतना भीड़ नहीं होगा, खड़े रहने की जगह नहीं थी गाइस। एंड बिकॉज ही इज़ अ गाय एंड आई वॉन्टेड टू बी विथ माई फ्रेंड, मैं लेडीज़ में नहीं चढ़ी। एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दीज मैन, मैं इधर ऐसे करके खड़ी थी मैं। बट इवन लेडीज़ डब्बा, आई थिंक यू नो व्हाट, लेडीज़ डब्बा हैज़ टॉट मी सो मच मराठी कस वर्ड्स। I love Marathi language, okay, and it's not because of whatever is going on in the state right now. I'm very vocal like that. So no, but I love the language. It's a very sweet language, yeah. So I used to go to college and used to tell them, "Arey meko sikhao, Marathi sikhao, I want to learn." And then of course, college friends being college friends, they started with the cuss words. So I was like, wait, ये तो सुना है मैंने.
उसने मेरे को एक बोला, मैंने उसको सामने 4 बोला. ये भी होता है ना, इन माई गुज्जू एक्सेंट. आई वाज लाइक लेडीज डब्बा. इतना राड़ा देखा है ना मैंने. ओ माय गॉड, इट इज़ सच एन एंटरटेनमेंट. मैं ईयरफोन उतार देती हूँ तुरंत. कभी ऐसा होता है ना, आज का एंटरटेनमेंट तो हो गया. आई लिव इन अ बैचलर पैड, 1 BHK छोटा सा घर है, ठीक है. तो टीवी नहीं है यार हमारे पास, कैन नॉट अफोर्ड. सो क्या एंटरटेनमेंट है हमारे पास? ये ट्रेन में राड़ा देखो, या फिर नेबर्स कोई झगड़ रहे हैं तो तुरंत ऐसे कौन लोग भाई आज तो ये लोग ये बात पे झगड़े. दैट इज़ आवर एंटरटेनमेंट गाइस, प्लीज़ डोंट जज मी. ओके, सो हम बातें कंटिन्यू करेंगे, बट अब नेक्स्ट आई लाइक टू कॉल ऑन स्टेज ध्रुवी शाह. जोरदार ताली हो जाए ध्रुवी के लिए. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अंटिल शी इज ऑन द स्टेज. Hey, how's everyone doing? So everyone's been performing in Hindi. I'm going to perform in English. Okay, so this one's called It's Complicated. It's complicated. My relationship with food. I have a lot of options, but I keep swiping right on the wrong ones. I stand in front of my open fridge, staring at the salad. I know it loves me. It's good for me. It'll keep my sugar level stable, but I shut the door on its face. I wait instead for fries, frozen, processed. The kind of love my mother warned me about, the kind of love that looks good only under dim lighting. With guilt, I toss them in the air fryer, and after the ding, I munch on golden yellow crunchiness, like heartbreak never happened. Then there's soup. Soup is full of good qualities. Soup is loyal. Soup is the one who shows up when I'm sick, when I'm sad, when I need someone to just hold me. Soup caresses me like a warm hug. And what do? I ghost it. Don't even show up for our date. Instead, I chase the devil, the greasy bad boy, the one who is not loyal, the one you call when you're drunk. A large cheese and mushroom pizza. Pizza doesn't text back. Pizza leaves stains. Pizza breaks my heart at 3 a.m. And yet, I go back every single time. I realize my mistake. I tell myself, this time I'll do better. This time I'll stay loyal. I promise myself kale, quinoa, detox water. But old habits die hard because right after dinner, I dig into a tiramisu. Layers of lies, layers of sweetness, layers of everything I said I'd avoid. And the next morning, the weighing scale gives me my report card. No subjects, no teachers, just one number staring back at me like a disappointed parent at a PTA meeting. I fail again. But here's the thing, I'm mending my ways. I've hired a health coach, someone who texts me back faster than pizza ever did, someone who doesn't care about my excuses, but cares if I drink enough water. I'm in it for the long haul now. Does that mean I've stopped flirting with fries? No. Does that mean I'll never sneak tiramisu at midnight? Probably not. But maybe for once, I'll choose food the way I wish I'd chosen people. Not just for the thrill of it, but for the way it stays. The way it holds me up, the way it helps me become who I want to be. So yes, my relationship status is complicated, but at least it's delicious. Thank you. If you like what you heard, I have more poetry on Instagram. It's Dhruvi the Writer. Thank you. Come on, come on, come on, come on.
अब आपकी एनर्जी ऐसे जा रही है। भूख लगी है क्या? मुझे तो लगी है, पर आपको समझ आ रहा है कि मुझे भूख लगी है? ओके, सो यार हमने हंसी मजाक तो कर ली, मतलब आई हैड नॉट बाय द वे प्रिपेयर्ड एनी स्टफ कि मैं आज क्या बोलूँगी. आई राइट समटाइम्स, बट whatever I write is very personal. It's for me. I don't think I ever want to perform that on stage. Actually, it's not about confidence. नहीं, confidence तो मेरे में गलत चीज़ भी इतना confidence मैं बोलती हूँ ना. I cannot tell you. Sometimes I surprise myself कि थोड़ा कम हो जा अभी. So yeah, I didn't prepare anything, and then while I was coming, I was, as I told you, I was late, right? I was in the train, and Harsh, who manages everything here, you might know him. He called me. He's like, मैं पहुँच रही हूँ. He's like, कोई बात नहीं, 7:10 तक पहुँच जाओ आराम से. I was like, okay. So he's giving me all the instructions, and then he's like, आपको भी time मिलेगा, इतना time मिलेगा. So it's good. I'm like, इतना time मिलेगा? मुझे लगा कि मैं ओपन माइक होस्ट कर रही हूँ, तो मुझे बोला अरे इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए वाह ये मजा है. इतना सारा टाइम मिलेगा, वाओ. मैं क्या, आई डोंट हैव एनी मटीरियल. बट देन आई वाज लाइक, देखो, whenever since I was a kid, एक कंप्लेन आता था मेरी स्कूल से. कैलेंडर में, आई वाज कॉन्वेंट स्कूल, ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल, ओके. तो मेरी कैलेंडर में एक ही नोट होती थी, सिंस आई वॉज इन प्ले हाउस, ओके, कि वेरी टॉकेटिव. सो नाउ व्हेन आई वाज इन प्ले हाउस, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल करके एक है राजकोट में, गर्ल्स स्कूल. तभी बहुत ये था कि पेरेंट्स सुबह के 4 बजे लाइन में खड़े रहते थे एडमिशन लेने के लिए. एंड माई पेरेंट्स हैव डन दैट एक्चुअली. आई एम वेरी ग्लैड दैट दे डिड दैट, बिकॉज वरना मेरा इतना फ्लुएंसी, वोकेबुलरी, व्हाटएवर आई एम इज बिकॉज ऑफ दैट स्कूल. बट तो प्ले हाउस में प्रिपेयर करते हैं ना तुम इंटरव्यू के लिए कभी स्कूल में. एंड माई पेरेंट्स वर लाइक, अभी से एक्सपेक्टेशन है निर्मला में ही एडमिशन चाहिए इसको. लाइक, यू नो व्हाट, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ये बहुत बोलती है, ये डेफिनेटली टीचर को इम्प्रेस कर देगी इन हर इंटरव्यू. एंड आई डिड दैट, एंड दैट वाज टिल आई लेफ्ट माई स्कूल. वेरी टॉकेटिव. मेरे को ऐसे शफल करते थे. एक तो हाइट छोटी है, ठीक है, तो हाइट वाइज जब भी बिठाते हैं तो आगे ही बैठना होता है. पर मेरी हरकतें हैं बैक बेंचर वाली. मैं बैक बेंच में बैठ के ना मैं दिखती ही नहीं हूँ. बेस्ट थिंग. एनीवे, दे शफल्ड मी इन द होल क्लास कि ये बहुत बातें कर रही है यार. मेरे को क्लास टॉपर के साथ बिठा दिया. 2 दिन बाद उसकी मम्मी कंप्लेन करने आई कि ये कुछ लिख विख के आ नहीं रही है स्कूल से, किसके बाजू में बिठा दिया है. तो आई थिंक ये साइंस तो तभी से थी कि मैं बातें तो मतलब कर ही लूँगी. सो there's this one thing I want to talk about. I have not talked about this actually ever before with anyone, and मैं पूरा टाइम चपड़ करती रहती हूँ. I am a very talkative person, and अगर मुझे कुछ फील हो रहा है then I need to convey it to whosoever it is. Okay, for someone like this, I have never talked about this, so trigger warning, disclaimer जैसा दे सकती हूँ. It's a very personal thing. Okay, so I had a really adorable dog called Sugar. Okay, and मैंने घर पे बहुत झगड़ा था कि मुझे डॉग चाहिए. मम्मी को बहुत डर लगता था. Anyway, मना लिया मैंने. 2 साल बाद we got a dog on my birthday. And I was like, I will take the sole responsibility, I will do everything. 11th में थी मैं. वहाँ पे 11th-12th स्कूल होता है, इट्स नॉट अ जूनियर कॉलेज. So 11th में थी मैं, बट आई वाज लाइक मैं पॉटी साफ करूँगी, सुसु साफ करूँगी, सब करूँगी मैं. एंड आई डिड दैट. ओके, व्हेन सो माय फादर्स फ्रेंड dogs had babies, so we just went to like visit them ki wow. And then this one dog comes crawling at my toes, and then of course I pick it up. I'm like, oh my god, so cute. And then we are checking other babies, we're looking at other babies, and वो पूरा time मेरे हाथ में ही है. And then he's like, if you're looking to adopt very healthy baby. I was like, what? I'm looking at dad, and he's like, हाँ ठीक है, चलो लेके चलते हैं. This is how randomly one day we got her, and I called my mom, and my mom was like, she kept running in the whole house, the 3 floors. Like if she's on ground floor, my mom won't be on the whole floor. इतना डर था. And then of course, as history says every time, she fell in love with her more than us, her own kids. Anyway,
तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मैंने ही उसको बड़ा किया है, ठीक है. ट्रेनिंग हर एवरी यूज टू स्लीप विथ मी. द फर्स्ट नाइट वी गॉट हर होम, माई डैड्स फ्रेंड वॉज लाइक शी माइट क्राई, यू नो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नाइट अवे फ्रॉम हर मदर, new house, all of those things. And I was like, agar I don't want any dog to go through this, you know. So I was like, agar ye roi na raat ko, hum kal inko wapas de देंगे. Like she needs to be with her mother, जो भी है. She has slept so peacefully on my face like this. मैं ऐसे सो रही हूँ and she's sleeping on my face, little kid. So of course then there was no looking back. I trained her, पूरा टाइम मेरे साथ सोती है and everything. And then मुझे मुंबई आना था. So my mom was like, you know what, she sleeps with you only in your room. You need to, उसको हैबिट होना चाहिए कि वो सबके घर में जाके हर कहीं पे भी वो सो पाए. तो एक हफ्ता मेरे को डोर बंद करना पड़ा. एंड शी यूज्ड टू स्लीप फॉर 1 week डोर के पास ही कि ये कभी तो खोलेगी. सो शी वॉज माई चाइल्ड, ओके. एंड आई हैड टू लीव, सो आई लेफ्ट. I came to Bombay and I used to video call only to see her. Honestly, sometimes I used to video call and my mom was like, हमें भी हाई बोल दे, हमें भी हाई बोल दे तुरंत, शुगर की आंखें, what is this? So anyway, and then I guess I got so busy with my job in Jio, like very Monday to Saturday, traveling and all was very hectic. I had called like twice or thrice in that 2 months and I मुझे नहीं दिखा रहे थे घर पे वीडियो कॉल पे. And it didn't even strike me. Then once my mom and dad both came to Bombay. Both of them together has never happened before. तो मुझे तभी सस लग रहा था कि कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है इधर. My mom came first and then my dad surprised me. When I came back home after office, he surprised me and it's a big thing. They've not come so much. They don't visit me much here. But so I was like, oh nice, okay. मेरे शायद नया घर में अभी शिफ्ट हुई हूँ तो देखने के लिए आए हैं and all. ठीक है, हम रात को मस्त सब साथ में बैठे थे, मूवी देखा सब. And बोला था मुझे कि अभी एक्चुअली इट्स नॉट द राइट टाइम. वी वर ऑल वेरी हैप्पी. सो इट्स लाइक कल बताता हूँ मैं, कुछ बात करने आए हैं. आई एम लाइक डिवोर्स तो नहीं ले रहे हो आप लोग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बैड वे टू टेल दिस टू मी. And then we slept, of course, and I had only one Sunday. I used to get back then, and I was sleeping till late. And my dad, being my dad, 9 बजे, he's like, उठ जा बेटा. I'm like, पापा आज तो शर्म कर लो, अब तो मैं भी काम करती हूँ, थोड़ा सा सोने दो, 9 का 9:30 सोने दो यार मुझे. And but he was trying to wake me up to tell me something. And I didn't wake up, but I was sleeping. I was talking to him, सो रही थी, and he was talking to me. And he is like, बेटा sugar is no more. मैं सोई थी. I was asleep. And I was like, what? And I might have like cried for the next 2 minutes. Very badly, okay, very badly. Like I couldn't breathe. Thought that I will die now because I couldn't breathe. उतना 2 minute के लिए मैं रोई. And then I was like, you know what? हमको मरीन ड्राइव जाना है, शॉपिंग करना है, फैशन स्ट्रीट जाना है, कितना सारा काम है और मेरे पास एक संडे ही है और मुझे कल वापस ऑफिस भी जाना है. Let's go and do that. And the worst part is it happened 2 months back. They didn't tell me because they didn't want to break this news to me over a call because I was living here alone. I didn't even have my roommates. So she's like, ये एकदम अकेली है, इसको अभी नहीं बता सकते हम. दिमाग को प्रोसेस ही नहीं हुआ कुछ भी. 2 मिनट शायद आंसू आए होंगे, like very badly. That's all that I've cried till date. And उस बात को 2 साल हो गए हैं अब आज. तो हम गए, घूम रहे थे, and my mom was like, what is, like, you know, talk about it. That is why we are here. That is why we are here. And she's showing me pictures and she's telling me what happened. And I was like, let's not. I don't want to talk about it. Okay, and it was so weird because, of course, people whoever came to know about it were checking up on me. And I understand their concern, but I don't want to talk about it. I don't know why. I had to go to a therapist and say, like, I think something is wrong with me because how can I not process something so big? But then again, that goes back to मेरा प्रोसेसर है थोड़ा, तो नहीं होता प्रोसेस सब चीज़ें. बट फिर मुझे लगा कि एक दिन तो मुझे एक्सेप्ट करना. इट टुक मी 1 year टू टॉक अबाउट हर इन पास्ट टेंस.
So I was like, ठीक है अभी धीरे धीरे right now I'm in the phase of my life where I'm working on my mental health, which is कंस्ट्रक्शन मुंबई में जहाँ पे अभी चल रहा है ना. So I was like, बहुत हो गया. अब तो मैं अकेले रहती हूँ. I'm an independent woman now. I'll work on myself. And this was the last thing that this was in my list of things. This was the last thing because I know this will take so much courage. And when I was in the train, when Harsh told me itna time, I was like, I think I will talk about it on stage because I don't think there is any other way I would be able to talk about this. When the spotlight is on stage, when I cannot see the audience's face. I've tried talking to my therapist, to my friends, to my parents. They've tried talking to me. मैं रोई भी नहीं हूँ. Till date, I think 30 seconds के लिए कुछ बीच में अभी भी आंसू आ गए थे, but that's all. मैं रो भी नहीं पाई उसके लिए अभी तक. So this small piece was for me. This was not for you all, but I decided कि I think I'm going to say it out on stage, and that is how I will process it. So we'll meet in the next show and discuss what my mental health progress is. But yeah, that's that. And I found my own ways. No, we're humans. We find our own ways to deal with the grief and void and the longing. I have a habit of looking at clouds. I love looking at the sky and the clouds. And I always find her in the clouds. That is how I talk to her also sometimes. So we all find our own ways of coping with it. So I think that was the first step, big step, that I'm finding a way to cope with it. And yeah, guys, that's my story about my sweet little dog Sugar. And I'm sure she's up there right now, being mom. यार बहुत ही सीरियस कर दिया ना मैंने. ओके वापस हम हमारी ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द ऑडियंस. आई लिटरली डिड नॉट थिंक अबाउट इट एंड आई जस्ट थॉट दैट आई विल गो फॉर इट एंड आई डिड दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द ऑडियंस टू लिसन टू मी अबाउट दिस वेरी पेशेंटली. Okay, up next I would like to call on stage नेहा जोशी. जोरदार तालियों से. पुणे से आए यार, और जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए. हेलो गाइस. सो मैं मानती हूँ कि हम सब यहाँ आर्टिस्ट हैं ना, इसीलिए हम सारे कलाकार हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, है ना. तो सारे कलाकारों के लिए पहले चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, रहते हैं ज़मीन पर उड़ने के दिल में चाह रखते हैं. निकल पड़ते हैं आँखों में ख्वाब लिए, निकल पड़ते हैं आँखों में ख्वाब लिए, घर छूट जाने का मगर मलाल रखते हैं. नसीब से चलती है जंग बरसों, नसीब से चलती है जंग बरसों, ठोकरों से हम रिश्ता खास रखते हैं. और सितारों को होगी आसमान की ज़रूरत, सितारों को होगी आसमान की ज़रूरत, हम कलाकार तो ज़मीन पर भी चमकने की औकात रखते हैं. अच्छा जी, तो मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है. ओके, तो हम लड़कियाँ ना शादी से पहले बहुत सपने देखती है कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है ना, और मम्मी पापा के लिए ये करना है, वो करना है. लेकिन जब शादी हो जाती है ना, हम जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे बचपन के सपने और बातें, है ना. तो जब हम इन जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं ना और इतना थक जाते हैं जिम्मेदारियों से, तो एक ही शख्स है जिसकी सबसे पहले याद आती है, माँ, है ना. तो मैंने इसी पे कुछ लिखा है कि माँ तुम याद आती हो, माँ तुम याद आती हो. वैसे उलझी रहती हूँ मैं कामों में, सही और गलत के अपने ही पैमानों में. उलझी रहती हूँ मैं कामों में, सही और गलत के अपने ही पैमानों में. पर होते होते सांझ सुहानी, होते होते सांझ सुहानी, याद आ जाती है तुम्हारी कोई कहानी. मैं आंसुओं को अपने छुपा लेती हूँ, मैं आंसुओं को अपने छुपा लेती हूँ, मिलने आऊँगी जल्दी ये खुद को समझा लेती हूँ. पर जब थक के सोने जाती हूँ, जब थक के सोने जाती हूँ, तो याद आ जाती है गोद तुम्हारी.
फिर सिसक सिसक के सो जाती हूँ, फिर सिसक सिसक के सो जाती हूँ, अगले दिन उन्हीं जिम्मेदारियों में फिर खो जाती हूँ। अच्छा मेरे कमरे में जाती हो क्या, मेरे कमरे में जाती हो क्या, वहाँ जाके मुझे ढूंढ पाती हो क्या, मेरे कमरे में जाती हो क्या, वहाँ जाके मुझे ढूंढ पाती हो क्या, मिलूँ कहीं तो ज़रूर बताना, गर मिलूँ कहीं तो ज़रूर बताना, खो गई हूँ मैं हो सके तो ढूंढ लाना, खो गई हूँ मैं हो सके तो ढूंढ लाना। अच्छा सपने ना, बचपन के सपने कैसे बुद्धू से होते हैं, है ना। तो मेरा भी एक सपना था कि मुझे पापा को एक कार दिलाना था, है ना। तो मैं अपनी माँ से अगली लाइनें कहती हूँ कि मेरी अलमारी खोलती हो क्या, मेरी अलमारी खोलती हो क्या, है कितनी यादें कितनी बातें टटोलती हो क्या, मेरी अलमारी खोलती हो क्या, है कितनी यादें कितनी बातें टटोलती हो क्या, पता है वहाँ मैंने एक ख्वाब सजाए रखा था, पापा का नाम रोशन करना है ये अरमान सजाए रखा था। सपनों वाला एक घर था मेरा, है ना, एक बड़ा सा घर था मेरे सपनों का, उसमें तुम दोनों का मैंने एक कमरा सजाए रखा था। सपनों वाली एक कार थी मेरी, सपनों वाली एक कार थी मेरी, उसके कागज़ों पे मैंने पापा का नाम लिखाए रखा था। कैसे सौंप दिया, कैसे सौंप दिया तुमने मुझे किसी और के हवाले, मैंने तो तुम दोनों में ही अपना संसार बसाए रखा था, मैंने तो तुम दोनों में ही अपना संसार बसाए रखा। अच्छा लास्ट कुछ मिनट है और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मेरा कोई शो देखने आए हैं ना, तो अपनी कविता की कुछ लाइनें कहती हूँ कि कहने को प्यार मुझसे सब करते हैं, कहने को प्यार मुझसे सब करते हैं, बताओ फिर जताने में क्यों डरते हैं, उसने किया है तो जताया भी है, उसने किया है तो जताया भी है, ब्याह है तो निभाया भी है, कह दिया सबने पराया, कह दिया सबने पराया, बस एक उसने अपना बनाए रखा है, एक लड़का है साथ मेरे जिसने मेरे अंदर के बच्चे को जिंदा रख रखा है। गाइस थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, मुझे ना ऐसे प्यारे कपल्स को देख के बहुत मज़ा आता है। आई एम नॉट वन ऑफ देम जो ऐसे नहीं, क्या प्यार की बात है, ब्रेकअप वाली बात है, ठीक है, बट आई लव दिस। ह्यूज शाउट आउट टू द कपल एंड एक बार उन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्यार के बारे में बातें तो मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर अभी मैं आपका कुछ टाइम लूँगी और मैं आपको, यहाँ पे कौन कौन अकेले रहे हैं, बैचलर्स कोई रहे हैं क्या अकेले एज बैचलर्स? ओह लवली लवली, सो मैनी पीपल, ओके। सो माई फर्स्ट हाउस इन बॉम्बे, स्मॉल 1 RK, ठीक है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। बॉम्बे का भी 1 RK था वो, एंड मैंने जब भी लिया तभी ऐसा था कि ओके विल फाइंड रूममेट्स लेटर, जो भी है, अभी ये मेरे बजट में, तो लेट्स गो फॉर इट। और तभी लिफ्ट चल रहा था जब भी मैं घर देखने गई थी, 6th फ्लोर पे था मेरा घर। yeah. फिर मुझे पता चला कि लिफ्ट का तो टाइमिंग है, दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक लिफ्ट बंद रहता है, और फिर रात को 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाता है वापस। एक भी टाइम ऐसा नहीं है जिसमें मैं लिफ्ट यूज़ कर पाऊँ। दोपहर तक तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ क्योंकि सोती हूँ, नो पापा। बट एंड ऑफ कोर्स आई कम होम लेट एंड देयर हैव बीन टाइम्स कि हम लोग ऐसे क्लबिंग से वापस आके थक गए ना। एक तो मैं आई लव डांसिंग, ये तो बता ही दिया था, अब तो हम सखियाँ हो गई हैं सब। तो क्लबिंग द गाइज बाउंसर्स हैव टू लिटरली लाइक थ्रो अस आउट कि मैडम बंद हो गया, अभी नाचना बंद करो आप। एंड देन ऐसी हालत में हम लोग घर जाते हैं, NVC लिफ्ट नहीं चल रहा है, 6 माला, वो 6 फ्लोर्स जो मुझे लगता है कि, एंड मी एंड माई रूममेट्स वी यूज टू स्लीप नीचे ही। लड़कियां होके ये काम किया, ठीक है, लड़कों का ऐसा रिएक्शन नहीं है। आई कैन सी द गर्ल्स रिएक्शन हियर बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। फिर आप तो स्टेशन में जाके भी सो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप कर सकते हो ये चीज़ें, समझ रहे हो। बॉम्बे में इंडिपेंडेंस है पर इतना भी नहीं है। हम लोग, क्योंकि आधा घंटा था लिफ्ट को शुरू होने में, ठीक है, और जिस तरीके से वेस्टेड थे हम आउट ऑफ डांसिंग, ऊपर तो नहीं चढ़ा जाता, हम लिटरली ऐसे करके सो गए। और किसी को पता था कि ये बैचलर है, 6ठे माले पे रहते हैं, लिफ्ट के लिए ही वेट कर रहे होंगे, तो उठाया उन्होंने हमें कि चलो आप ऊपर चले जाओ अभी, ठीक है। गए हम ऊपर, हमारा तो
दिन ख़त्म तब होता है जब लोगों का दिन शुरू होता है, क्योंकि हम तो कॉलेज में हैं। तो सो गए घर जाके हम। पानी आता था 10 बजे, वहाँ पे पानी आने वाला है। 24 आवर्स वाटर इज़ अ लग्जरी इन बॉम्बे। तो माई रिस्पॉन्सिबल रूममेट, 3 लोग थे हम, वन ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम दोनों ने मिलकर बिगाड़ दिया था। बट वो उठी चालू करने के लिए, अभी उसका वो था भी इतना ऊपर, मेरे को कोई टेबल पे चढ़ के वो चालू करना पड़ता है। नींद में ऐसे स्टंट करने चाहिए क्या मुझे? मैं एनीवे आई एम अ वेरी क्लमजी पर्सन। मैं चलते चलते एक बार मेरा पैर मुड़ गया था, चलते चलते। मैं ऑफिस पीपल डिडंट बिलीव इट, लाइक कैसे? उन्होंने CCTV निकलवाया है, मैं खड़ी थी और मेरा पैर मुड़ गया। दैट इज़ हाउ क्लमजी आई एम। सो शी वोक अप एंड उसने मोटर चालू कर दिया, फिर वो आके सो गई और सो ही गई। एंड हम नीचे गद्दा बिछा के सोते थे, एक बेड था नीचे, गद्दा बिछा के 2 जन सोते थे। एंड सपने में तो बारिश हो रही है, पैरों में क्यों फील हो रहा है? Then I wake up and the house is literally a swimming pool with ऐसे। और हम अगेन बैचलर पैड है तो प्लीज़ साफ इमेजिन करना ही मत। मम्मी आके बोलती थी बेटा लड़कों का घर है क्या ये, लड़के ऐसे रहते हैं। मैंने बोला मम्मी आई एम नॉट अ सेक्सिस्ट, आई एम नॉट अ सेक्सिस्ट, आई एम इररिस्पॉन्सिबल एज बॉयज़ आर। मैं उनको क्या सलाह दूँ? एनीवे, तो ऐसे प्लास्टिक की पन्नी, ऐसे सब क्या क्या तो चीज़ें थे। और हम बेड पे ऑफकोर्स ऐसे करके तीनों ऐसे करके बैठ गए, क्योंकि अब नींद नहीं हुई हमारी, हम प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे कि चल क्या रहा है। हम तीनों ऐसे करके बैठ गए कि क्या चल रहा है, ये क्या है? और फिर ऐसे चीज़ें तैर के आ रही है। वो जो 2-3 महीने पुरानी कुछ चॉकलेट जो जिसके लिए हमने जगड़ भी लिया था, वो ऐसे तैर रही थी, उसके रैपर निकला हुआ है, चींटियाँ हैं, कॉकरोच हैं। सो बैड गाइज। फिर हमने सब उठाया एंड हम साफ कर रहे हैं एंड आई एम लाइक यार। और जो उसके बाद ऑफकोर्स क्योंकि पानी निकालना है ना, अभी मेरा चेहरा दिख रहा था टाइल्स पे, मेरा चेहरा टाइल्स पे दिख रहा है। हम लाइक घर में नया कलर कराया, ऐसा क्यों लग रहा है? इतना चमकने लगा भाई, दिवाली की सफाई जब मम्मी करती है ना, वैसा वाला पूरा घर चमक गया। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, देखो लड़की का घर, लड़कियों का घर ऐसा होता है ना, ये देखो। अभी I have too many stories like this, and I'm sure you all know this. But I think now my 4th year of bachelorhood, I've become a little responsible because of that one roommate I still live with, who was the responsible one. So she has Uno reversed me, and now we're in a cute 1 BHK in Andheri. And of course, I'm very excited to show my friends. Oh, new house. Everybody who's coming home, their first reaction, oh, it has balcony also, guys, by the way. Yeah. So स्टोर रूम होता वो राजकोट में, वैसे पूरा घर ही स्टोर रूम होता, बट या। तो आई एम एक्साइटेडली शोइंग एवरीबडी, ओ लुक एट माय न्यू हाउस। एवरीबडी लाइक यार रियली नाइस, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। एक दोस्त ने बोला, दूसरे दोस्त ने बोला, एवरीबडी इज सेइंग दैट। आई एम लाइक यार क्लीनलीनेस भी मतलब अच्छी ही चीज़ है, कर लेना चाहिए थोड़ा साफ। बट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे मेस पसंद है, क्योंकि मुझे पता है लाइटर उधर है, कोई भी चीज़ मुझे चाहिए वो उधर ही है टेबल पे, क्योंकि वो वहाँ पे रखी है। अभी अच्छे से याद करके कोई जगह पे मैं रखूँगी, फिर वो मुझे याद नहीं आता कि मैंने कहाँ रखा है। सो दिस इज़ माई रीज़न टू बी अ मैसी पर्सन, बट आई थिंक माई रूममेट इज़ वर्किंग विद दैट, बिकमिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट गाइज। ओके, आई वुड लाइक टू इन्वाइट अभी वापस परफॉर्मेंस को मैं इन्वाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर कर दिया मैंने, बोर कर दिया क्या इस पर? नहीं, अब बहुत ही स्वीट हो यार क्या होगा तो भी नहीं बोलोगे। ओके, अब नेक्स्ट हमने ध्रुवी शाह को बुलाया है क्या? यू आर ध्रुवी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये कट कर देना लाइव से अगर कर सकते हो तो। ओके, अब नेक्स्ट समवन हु आई एम गोइंग टू इनवाइट नाउ। ओके, मैंने कल ही उनका शो होस्ट किया है, ही इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड, तो थोड़ा बायस्ड उनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, इज़ बिकॉज आई नो हिम। ही डिड हिज गुजरात टूर and Bombay's show. कल लास्ट उनका शो था in Mumbai, and I've hosted for him 2 of his shows. I've hosted. Okay, I've seen this person's journey very closely, and it makes me very proud to today also hosting the show and invite you on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome Keyur Popat on the stage. जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. जब तक वो स्टेज पर ना आए, come on, come on, come on. थैंक यू सो मच केशवी वंस अगेन। कहा है कि आगाज़ तो होता है
पर अंजाम नहीं होता, आगाज़ तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता. મીના કુમારી નાઝ નામના એક કવયત્રી જેમનો અદ્ભુત શેર. અચ્છા, હું ગુજરાતીમાં આવી ગયો. તો ગુજરાતી બોલાય ને? કારણ કે અહીંયા કેવું છે, હિન્દી પણ બોલાય કે નહીં એવું પૂછવું પડે એવી ઘટના છે. વાંધો નથી, ચલો. તો આ વાત જેનાથી મેં શરૂઆત કરી કે आगाज़ तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता, जो मुझे डेडिकेट करनी है मेरी मातृभूमि को. क्योंकि एज केशवी मैंशनड की गुजरात टूर यानी कि जन्मभूमि जूनागढ़ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफ़र जो मैंने तय किया है पिछले 35 डेज़ में, लेकिन जन्मभूमि से लेकर आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ. ये कलाकार बनने का सफ़र पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से चल रहा था. और लोगों के जीवन में रिश्ते आते हैं, मेरे जीवन में फरिश्ते आते हैं. ऐसा ही एक फरिश्ता, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई वो मेरे सामने है, रनमल जैन मेरा दोस्त, जिसने 15 जून को मुझे बोला कि भाई अगर मन में बातें हैं, जज्बातें हैं तो उसे बयां करो, डाल दो अपना शो, जो होगा वो देखा जाएगा. और 15 दिन में मैंने पहला शो परफॉर्म किया इन अहमदाबाद, 70 सीटर शो. और उसके तुरंत बाद वाले संडे पर मैं फर्स्ट टाइम एवर हैबिटेट में परफॉर्म कर रहा था. और उसके 2 महीने बाद फर्स्ट एवर टूर करके आया हूँ यहाँ पर. आगे की 3 मिनट, आपकी नज़र 2 मिनट. मुंबई है, बारिश है, तो वरसाद माटे केयूरनी कलमे लखाયું. મારા શરૂ નામ છે કેયુરની કલમે, यानी कि केयूर की कलम से, कि झरमर वरसतो वरसाद, अचानी चुस्की ने दिल में तारी याद. झरमर वरसतो वरसाद, चानी चुस्की ने दिल में तारी याद, कोने नसीब हो एक बार एक अंदर एम બે વરસાદ. કે મન મૂકીને વરસે છે વરસાદ છે કે તારી યાદ છે, મન મૂકીને વરસે છે વરસાદ છે કે તારી યાદ છે, અંતર મનમાં સ્પર્શે છે વરસાદ છે કે તારી યાદ છે. આવે છે અણધાર્યો ને ભીંજવે છે ભીતર સુધી, આવે છે અણધાર્યો ને ભીંજવે છે ભીતર સુધી, કદાચ આ વરસાદ છે એ જ તારી યાદ છે. અને બહાર વરસાદ છે એટલે બધું ભીનું છે, બહાર વરસાદ છે એટલે બધું ભીનું છે, અને અંદર બધું ભીનું છે એટલે બહાર વરસાદ છે. અને આ કેયુરની કલમે લખાયેલા વરસાદમાં વિરહની વાત જે રજૂ કરી, પણ આ વિરહ એવો હોય કે જ્યારે પ્રેમી સાથે ન હોય, વરસાદ હોય પણ પ્રેમી ન હોય, પણ વરસાદ પણ હોય અને પ્રેમી પણ હોય, ત્યારે અમારા ગુજરાતી રમેશ પારેખ લખે કે આકળ વિકળ આંખ કાન વરસાદ ભીંજવે, હાલક ડોલક ભાન સાન વરસાદ ભીંજવે, ચોમાસું નભ વચ્ચે લથબથ સોળે કળાએ ખીલ્યું રે વરસાદ ભીંજવે, બંધ હોઠમાં 16 વર્ષની કન્યા આળસ મરડે રે વરસાદ ભીંજવે, અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે, મને ભીંજવે તું તને વરસાદ ભીંજવે, કોને કોના ભાન સાન વરસાદ ભીંજવે, થરથર ભીંજે આંખ કાન વરસાદ ભીંજવે. તો એ વરસાદને ભીંજવવાની વાત ગુજરાતીમાં રજૂ કરવાની ઈચ્છા થઈ. વાત મારી જેને સમજાતી નથી, ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી. અને નવરાત્રિનો સમય આવે છે, છેલ્લી 2 લાઈનો કહેવી છે કે ક્યાંક દેશી ક્યાંક શુદ્ધ તો ક્યાંક તળપદી છે બોલી, ક્યાંક દેશી ક્યાંક શુદ્ધ તો ક્યાંક તળપદી છે બોલી, પણ ડોલી ઉઠે હૈયું જ્યારે ઢોલ વગાડે ઢોલી. थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव बीन अ ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू. और मैं बिल्कुल मौका नहीं गंवाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम आवर होस्ट केशवी ऑन द स्टेज. मैंने आई गेस इनका द शो दैट आई डिड वो भी बहुत बार सुना है मैंने, बट एवरी टाइम आई लिसन टू हिम he always catches my attention. So really good man, really good. Always fun introducing you on stage. And yes, before we go ahead, वापस थोड़ी बातें करें कि नहीं? नहीं, आप मना कर सकते हो वैसे, ठीक है, ओके, बातें नहीं करती हूँ. बट एक पोएट्री है, एंड अगेन दिस इज़ फॉर Sugar that I wrote. The Rajkot show, when I opened for him in Rajkot, Keyur's show, I did this poetry. And poetry तो कर ली, but मुझे ऐसा लगा कि इसका सर पैर नहीं था for the audience at least to understand that. So I thought, why not perform that poetry? Would you all like to hear it? Yeah? Okay, so it starts something like this. ये अरमानों की बस्तियाँ ढलते शाम मस्तियाँ,
ये अरमानों की बस्तियाँ, ढलते शाम मस्तियाँ, मुझे रास ना आए अगर तुम ना हो। अगर तुम ना हो, जो तुम ना हो, ये चांद ना आए सुकून अगर तुम ना हो। इन मुस्कुराहटों में ठहरे कितने ख्वाब हैं, ये रात बेकरार अगर तुम ना हो। मैं कह दूँ तो सब कुछ है, मैं कह दूँ तो सब कुछ है, जो पूछे ज़माना तो कुछ नहीं। मैं कह दूँ तो सब कुछ है, अगर पूछे ज़माना तो कुछ नहीं। करती किससे बातें बेशुमार अगर तुम ना हो। यस, thank you. So yes, this one was for Sugar that I wrote, and after writing I was like, एक आर्टिस्ट का मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी दिल टूटता है ना तो वो बहुत अच्छा कंटेंट है. मतलब just turn your heartbreak into art. I think that's the best thing you can do. And I've come to a realization, for a person like me, I have a lot of unresolved issues in me, okay? It's called PTSD. Yeah, my father doesn't believe that it's a real thing, but yeah, so I'm working on it, and I've come to realization ki when I read other people's stuff, when they write that, okay, I know Keo's story personally, so whatever he recites, I know what is his context. But when I read pieces about love and all those things, I just wonder कि उनका muse कौन होगा. And in today, so I am a Gen Z. कर लिया सबने जज? कर लिया? नहीं? अरे यार बहुत करते हैं यार. जय अभी नेपाल में जो चल रहा है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा. But as a Gen Z, I'm actually happy कुछ तो हो रहा है. Anyway, let's not get there. वापस venue को मैं एक ही बार perform किया है. मेरी वजह से वापस नहीं हो सकता कुछ यहाँ पे. So yeah, so the people around me are very different. When I came to Bombay, I couldn't connect with anyone. क्योंकि बहुत अलग है यार लोग, and I'm very personal. I'm very like sensitive and I'm a people's person. मतलब अगर तुम मेरी लाइफ में एक बार आ गए, and if you're my friend, I will make sure to मैं पहाड़ हिला सकती हूँ, मैं ज़मीन आसमान एक कर सकती हूँ. I'm that kind of a person in love, in friendship. And the people here were not really like that. So I was like, what is this? इतनी भीड़ वाला शहर and everything, but I feel so lonely inside. इतने लोगों के आसपास रह के भी so lonely. But ठीक है, फिर वो लोकल में मेट्रो में रोके, सेम स्टोरी, सबका सेम स्टोरी होता है. I'm not going to glorify my story. Everybody's story is that. So, but I've come to realize in these days कि for me to touch those parts, which is very difficult to process, one of them which I did today, I think art is the way to convey, to process, even for yourself. If I'm sitting here, I'm standing here on the stage and you think I'm performing for you all, but maybe I'm just trying to heal the part of myself that I could never even come to like face to face to talk. This happened with me. I recently turned 23 in April, and एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो करना पड़ेगा अभी इसका. I have to work on myself. So कितना ये होता है ना, when I was 13 तब से कुछ जो भी है चल रहा था, and I'm like at 13 one day I just woke up and I became 23. I had no other option. I had to be as mature as a 23-year-old would be. And I started working very early. So I started hanging out with people who are in their 30s. Now they're in their 35, 34. Okay, that is my group that I hang out with. So my college kids, I couldn't just relate to their problems. So my situationship number 1 and my boy number 2 and my boyfriend number 3, I don't know what to, I'm like, क्या? मुझे एक ढंग का दोस्त नहीं मिल रहा है ये शहर में. Are these your problems? My problem is मैं अगले महीने रेंट भरूंगी तो खाऊंगी कैसे, और खाऊंगी तो रेंट कैसे भरूंगी. मतलब ये सिर्फ एक 30-year-old ही समझ सकता था. So I realized that I've actually been like also hanging around with people who are way older than me, and I love it. Actually, I do. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे उम्र के लोगों से तो दूर ही रहना है मुझे. Yeah, anyway. So क्या बोल रही थी, भूल गई. Okay, so growing up very fast, yeah. So at 23 I realized कि पर वो 13 to 23 का क्या, उसका भी तो कुछ हिसाब होगा ना. मुझे लग रहा है उसी की वजह से गड़बड़ है.
तो हम उसको ठीक करेंगे और मैं वो स्टेज पे आके ठीक करूँगी आप सब लोगों के सामने. होपफुली इफ़ आई होस्ट हियर अगैन एंड इफ आई एक्चुअली रियली विश दैट यू ऑल कम अगैन एज माई ऑडियंस and listen to my stories so that we can work on my mental health together. Okay, up next I would like to invite on stage Pradeep. Zordar taaliyan ho jaye Pradeep ji ke liye. Come on everybody. Until he's on stage. Come on, go on, go on. नमस्ते सभी को. मैं एक गज़ल से शुरू करूँगा. आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से उसके घर नहीं गया. आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से उसके घर नहीं गया. उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी, उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया. उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया. और शेर है कि सांसें उधार लेके गुजारी है ज़िंदगी, सांसें उधार लेके गुजारी है ज़िंदगी, पर हैरान वो थी कि मैं क्यों मर नहीं गया. बहुत बहुत शुक्रिया. सांसें उधार लेके गुजारी है ज़िंदगी, पर वो हैरान थी कि मैं क्यों मर नहीं गया. और शेर है कि बच्चों के साथ उसको देखा तो दुख हुआ, बच्चों के साथ उसको देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया. और है कि इस दिल को पसंद थी बस एक ही दहलीज, इस दिल को पसंद थी बस एक ही दहलीज, इसके सिवाय मैं किसी के दर नहीं गया, इसके सिवाय मैं किसी के दर नहीं गया. आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से मैं उसके घर नहीं गया, मैं उसके घर नहीं गया. बहुत बहुत शुक्रिया. और एक और दूसरा गज़ल है कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है. पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है. अपनी घर की कलह से फुर्सत मिले तो सुनिएगा, अपनी घर की कलह से फुर्सत मिले तो सुनिएगा, आजकल पराई दीवार पे कान कौन रखता है, आजकल पराई दीवार पे कान कौन रखता है. और है कि जहाँ जब जिसका जी चाहा थूक दिया. हम करते हैं ना, हमारी आदत है लोगों की कि चलते चलते कहीं भी कर दिए. तो है कि जहाँ जिसका जी चाहा थूक दिया, आजकल हाथ में पीकदान कौन रखता है, आजकल हाथ में पीकदान कौन रखता है. और है कि खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, आजकल परिंदों में जान कौन रखता है, आजकल परिंदों में जान कौन रखता है. और है कि हर चीज़ मुहैया है हमारे शहर में किस्तों पर, हर चीज़ मुहैया है हमारे शहर में किस्तों पर, आजकल हसरतों पे लगाम कौन रखता है, आजकल हसरतों पे लगाम कौन रखता है. और आगे की लाइन है कि बहला फुसला कर छोड़ आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम, बहला फुसला कर छोड़ आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम, आजकल अपने घर में पुराना सामान कौन रखता है, आजकल अपने घर में पुराना सामान कौन रखता है. बहुत बहुत शुक्रिया. दैट्स माय टाइम. थैंक यू सो मच. एकदम साइड में ही जाने दिया है हमने माइक का स्टैंड. मुझे भी शुरुआत में आया था. एक तो मैं माइक का स्टैंड मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि हाइट, एंड बिकॉज आई एम होस्टिंग. अगर परफॉर्म कर रही होती तो एक बार के लिए ठीक है, कैसे किया तो हर बार आप सबकी हाइट तो ऑफकोर्स मेरे से बड़ी है, तो वो ऐसे 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 पूरा टाइम तो थोड़ा मैंने साइड में किया था, एकदम साइड हो गया है वो अभी. बट ग्रेट, आई थिंक एवरीबडी प्रिफर्ड माइक इन देयर हैंड्स. Okay, here we come towards the end of the show. We are done with all the performers. Thank you so much. This was my first open mic and I've actually never been nervous.
फॉर एनी शो एक्चुअली. मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोल्ड फीट आता है लोगों को, क्या होता है ये मुझे नहीं होता ये. बट आई थिंक टुडे वाज वन ऑफ दैट times, because also when I had come to Bombay I used to visit Habitat like thrice a week, but for stand up. I love watching stand up. तो मैंने मैंने अभी इतनी फ्री की टिकट्स में भी stand up देख लिया because इतना I have visited here. So hosting here was a big deal for me. I love this stage, I love this platform, how the artists come together and how we all hype each other up. Some people perform their first time. Sir, it did not look like it was your first time. आप पुणे से आए थे कोई परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो गोरेगांव से आए थे उनके लिए भी. Everybody. And then I have, of course, my friends who have come from Ahmedabad to perform, especially here. Shout out to all my friends who have come here to see me. Shout out to the audience. Okay. After this show, I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे बारे में जानते ही हो अभी, जितना शायद मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता उतना आप लोग अभी जानते हो. So I really feel like I could build a personal connection with each one of you all. आपको पसंद आया? Yes, yes. Will you recommend me next time to host for Habitat open mics? Yeah, are you listening? Is the staff like? Yeah, no, but thank you so much for being a great audience. Okay, your pictures you'll get in a week, and of course the live streaming is there. If you're uploading it anywhere, please do tag Indie Habitat. You all know the Instagram page, and yes, keep coming here, man. And you can follow me as well if you want to. Keshvi Hingu on Instagram, and apart from that, all the performers. I think we have a story. 7 p.m. performers. We've been very supportive today. I think we should go back and follow everyone, be in touch with everyone. Okay, आर्टिस्ट ही एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे तो ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी. ओके, सो दिस वाज माय टाइम. दिस इज मी केशवी हिंगू साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. थैंक यू सो मच.